So, hello everyone. In this video, we are going to talk about TCS result. Yes, you heard right. TCS result because it's getting delayed from a long period of time. Like we are assuming that our result will be declared between 16th of April to 17th of April, but it is not yet declared. So don't worry. I mailed TCS. Okay, I mailed TCS for a particular information, and today I am sharing with you all. So if you're watching this channel for the first time, don't skip this channel. You will be uh, regret later. So it's better to subscribe and share with your family and friends who are preparing for any type of job and they are wanted to start their preparation from P6. Okay, so this is all about the channel and me. And today, without wasting time, here wanted to share a particular email. I emailed TCS for a particular information which is for uh, TCS exam, which is held on 15th of March 2025. So I mailed them that when we will get our result. So here I got a reply which is from TCS. So it is confidential, but I am sharing with you because it's not that confidential. It's just an email, a normal email, and it's a normal reply which is would request you to wait. So I mailed TCS that ma'am when we will get our result which is held on 15th of March. ठीक है. So यहाँ पे हमारा ऑफिशियल रिप्लाई क्या है, जस्ट वेट करना है हमें, और वेट करने के साथ साथ आई विल सजेस्ट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी. ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है, तो दैट्स वाई यू हैव टू किक स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रोसेस. ठीक है, खुद से अपने आप को एनालाइज करो दैट हाउ एंड वेयर यू आर लैकिंग एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. इफ यू आर वीक इन इंग्लिश, just focus on your English. If you're weak in communication, focus on your communication. If you are fearing any type of phobia, like you get nervous in talking in front of others, just focus on yourself and just motivate yourself that yes, I can do and I can talk to anyone and with confidence and with a polite manner. Okay, so doesn't mean that if you are confident you just uh, contradict yourself with misleading or any inappropriate words. So it is important to know the difference between confidence and जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बदतमीजी. So this is two things you have to avoid. दोनों को contradict नहीं करना. If you are confident, just show your politeness, kindness with it. Okay. So now moving further, दिस इज ऑल अबाउट आई एम शेयरिंग अबाउट टीसीएस रिजल्ट. सो मैं देख लो कब मैंने किया था, 21 अप्रैल को किया था, 22 अप्रैल को रिप्लाई आ गया. सो दैट्स वाई आई कीप टेलिंग यू इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट ईमेल देम एंड दे विल श्योरली रिप्लाई. ठीक है, और अगर रिप्लाई आपको नहीं आता यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन एंड आई विल आस्क ऑन योर बिहाफ, एंड अगर मुझे वो आंसर आता होगा सो आई विल आंसर यू इन कमेंट बॉक्स एज वेल. सो वन मोर थिंग, इफ यू डिडंट जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जो डू जॉइन इट. और अभी तक आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी जो टीसीएस के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे. सो इफ़ यू आर ओनली वांट दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हियर इट एंड्स. एंड इफ़ यू एम नाउ, मैं क्या शेयर करने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि हैं करियर के लिए, फ्यूचर के लिए. सो इफ़ यू वांट टू नो, जस्ट keep watching this video. If you don't want to know, if you only focusing on TCS, you can skip this part. ठीक है, तो now hello everyone again, and now I am sharing with you a preparation guidance. Okay, preparation guidance, it doesn't mean that I am sharing a syllabus and a timetable with you all. Preparation means a backup plan. ठीक है, a backup plan for all of you. And one more thing, a secure job. Okay, these two things you have to think right now, and it is a right time to think and to prepare also. देखो होता क्या है, वी आर बीटेक स्टूडेंट्स. आई होप इफ आर वाचिंग दिस वीडियो यू आर बीटेक स्टूडेंट बिकॉज दिस इज अ टीसीएस video. So I know you are a BTech student. So many have different career goals and career path, different interests. And if I talk about myself, so I am focusing on defense. So that's why I have chosen BTech, because defense के लिए जाने के लिए BTech is the best option. It gives you multiple entries with multiple options. That's why I've done BTech degree. So अगर आपको BTech defense में जाना है, so BTech is best for you. And if you are
are aiming for any government job, I will suggest to apply for the defense at once in your life if you really patriotic and want to serve the nation. And if you are not in that group, I want a particular government job, so I will suggest a banking exam, SBI PO जिसको हम बोलते हैं, पीओ के एग्जाम बहुत होते हैं, तो यू कैन जस्ट गिव इट आउट एंड हैव अ ट्राई दैट एंड हैव अ ट्राई ऑन योर लक ऑल्सो ऑन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। तो बीटेक से बिल्कुल डिफरेंट है ये सारी चीज़ें, इसलिए यहाँ पे मैंने बोला था कि जो बीटेक से रिलेटेड नहीं है, मतलब जिनको टीसीएस के अलावा नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है, वो कैन स्किप दिस पार्ट। सो अभी मैं यहाँ पे करियर को लेके यहाँ पे बात करूँगा। सो यहाँ पे देखो, एक तो हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, दूसरा आप हो सकता है कि आप एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो जो इजीली आपको मिल जाए, तो यू कैन गो फॉर एसएससी एग्जाम्स। एसएससी सिर्फ सीजीएल नहीं कराता है, जो आप देखते हो 90% टू 99% ऐसे जा रहा है कट ऑफ, सॉरी 95% ऐसे कट ऑफ जा रहा है। सो दिस इज नॉट द गेम। एसएससी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम कराता है, लाइक जीडी एग्जाम, सीएचएसएल एग्जाम, ओके, एमटीएस एग्जाम, बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखो प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है आपको। एंड वन मोर थिंग, एफ कैट भी होता है हमारा, ठीक है, एफ कैट इज इजी टू क्रैक एंड यू कैन इजीली प्रिपेयर इट इन अ 1 month, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई रिसेंटली गिवन द एग्जाम एंड इट इज, आई एम श्योर इट इज द बेस्ट एग्जाम आई हैव गिवन इन वेरी लेस टाइम एंड गॉट अ गुड मार्क्स। सो यहाँ पे एफ कैट के लिए आप जा सकते हो, इट इज़ फॉर एयरफोर्स एग्जाम, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, एंड इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी दोज वांट टू फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ कैट का एग्जाम दे सकते हो, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, एंड एसएससी का एग्जाम हो गया, एंड वन मोर थिंग, यूपी पुलिस का एग्जाम भी आ रहा है, सो यू कैन गिव इट ऑल्सो। एंड जो भी एग्जाम आए पुलिस से रिलेटेड, चाहे बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यू कैन प्रिपेयर एंड गिव इट, ओके। सो जब आप एग्जाम दोगे, जितना ज़्यादा आप एग्जाम दोगे, यू विल गेन दैट मच इम्पॉर्टेंट lessons that you didn't prepare for maths well, you didn't prepare English well, नहीं तो आपका क्रैक हो जाता, ठीक है, एग्जाम क्रैक हो जाता। तो यहाँ पे आपको एनालिसिस मिलेगा खुद से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बेसिक बताऊंगा, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश फर्स्ट, ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। सेकंड प्रायोरिटी इज योर मैथ्स, और मैथ्स यहाँ पे किस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज़ फॉर 10th लेवल, ठीक है। 10th लेवल का मतलब ये नहीं कि आपको अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy दे रखा है तो आपको यहाँ पे xy की वैल्यू हमें बतानी है, नहीं। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल जो हमने मैथ्स पढ़ी है 10th लेवल की, उसी को हमें शॉर्ट ट्रिक से समझना है कि कितने कम टाइम में हम कितना ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। बिकॉज यहाँ पे जो भी एग्जाम मैंने ऊपर बताया उसमें सारा गेम टाइम का है, आप सॉल्व तो कर लोगे, नो डाउट, आप लॉन्ग मेथड मतलब बेसिक मेथड लगा के सॉल्व कर लोगे। तो वहाँ पे आप क्या, आपको पता है कि 60 मिनट्स मिलते हैं आपको 85 क्वेश्चन करने के लिए फॉर एसएससी एग्जाम्स, ठीक है। एसएससी में आपको इतना ही टाइम मिलेगा, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा होंगे टाइम कम होगा, ये उसका पैटर्न होता है, चाहे वो कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो। आई डोंट नो अबाउट सीजीएल, बट एसएससी, एचएससी, एचएसएल और एमटीएस और जीडी में जितना हमारा टाइम होता है उससे ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 1 मिनट भी नहीं मिलता आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब पर्टिकुलर यहाँ पे आपको सिर्फ 85 मैथ्स के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे। एक तो आपको मैथ्स मिलेगा, एक जीए जनरल एप्टीट्यूड मिलेगा, एक आपको जीके मिलेगा, और किसी किसी में हिंदी और इंग्लिश होता है, चाहे आप हिंदी में एग्जाम दे लो चाहे आप इंग्लिश में वो पार्ट दे लो, लैंग्वेज टेस्ट। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज करता हूँ, तो वो इंग्लिश, इसको मैं निगलेक्ट करता हूँ बिकॉज एसएससी में इंग्लिश बहुत ही ईजी लेवल की आती है, यू कैन जस्ट प्रिपेयर इन 2 और 3 वीक्स, आपका इंग्लिश यहाँ पे निकल जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश यहाँ पे निकल जाएगा। मैथ्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, तो यहाँ पे मैथ्स निकल जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड भी 1 मंथ आपके लिए चाहिए, और जीके आपको पढ़ना ही पड़ेगा 6 मंथ्स का, चाहे वो आप स्टैटिक जीके कर लो, ठीक है, स्टैटिक जीके विद जो हमारा करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स 6 मंथ का, स्टैटिक जीके तो आप जानते हो जो चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। सो यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक 3 कॉमन सब्जेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो आप कोई सा भी आप एग्जाम दे लो। तो यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश एंड वन मोर थिंग, जनरल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब जो आपको क्वेश्चन मिलते होंगे, राम गोज टू वेस्ट डायरेक्शन देन टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो मिलते हैं वो एप्टीट्यूड में आते हैं। डाइस वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि यहाँ पे बताओ, जब इसको हम डाइस को फर्स्ट मतलब फ्रंट पे रखेंगे तो कौन सा आएगा नंबर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन किस में होते हैं, एप्टीट्यूड में। तो ये वाला एप्टीट्यूड, मैथ्स और इंग्लिश, ये 3 आपको मिलेंगे ही, बस ये आपका क्या होता है, लेवल बढ़ता या घटता रहता है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम।
बस आपको लेवल अप डाउन करते रहना है और बेसिक तो आपको तीनों के पढ़ने ही पड़ेंगे और तीनों आपको प्रिपेयर रखना है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आप बेसिक से पढ़ के जाते हो तो बेसिक से आप कौन कौन से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सो बेसिक से आप कैट का एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है, एफ कैट का हो गया। और यहाँ पे मैं जी के अलग से रख रहा हूँ बिकॉज जी के यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू लर्न। तो यहाँ पे जी के वो आप समझ लो, बट यहाँ पे तीन जो कॉमन होगा, जैसे कि अगर आप देखोगे बैंकिंग एग्जाम में तो इंग्लिश, मैथ्स और एप्टीट्यूड पूछता है, जी के फर्स्ट राउंड में नहीं पूछता। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। रेलवे भी सेम यही पैटर्न है, तो रेलवे भी सेम करेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको मैथ्स, जी के और इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है। तो बेसिक से आप एफ कैट का निकाल सकते हो, एस एस सी, सी एच एल, सी जी एल का छोड़ के, सी जी एल भी निकाल सकते हो बट यहाँ पे मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। तो सी जी एल का छोड़ के जितने भी एस एस सी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो निकाल सकते हो। यहाँ पे आप दूसरा, हमारा तीसरा एग्जाम हो गया सी डी एस का। सी डी एस यहाँ पे थोड़ा सा इसका हायर लेवल आपको जाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे आप सी डी एस जब हायर लेवल का पढ़ोगे तो सी डी एस और सी जी एल दोनों आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पे सी जी एल के लिए आपको थोड़ा सा स्पीडली हैंडल करना पड़ेगा बिकॉज सी डी एस का टाइम आपको अच्छा खासा मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा ही मिलता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी फॉर सी जी एल। और सी डी एस थोड़ा सा आप अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स है, 50 क्वेश्चन भी सही करके आ जाते हो तो ओवरऑल आपका कट ऑफ क्लियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कह रहा था कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर करियर, नॉट फॉर टीसीएस ओनली। टीसीएस के लिए सिर्फ आप फोकस मत रहो। यस, इफ आर पैशनेट टुवर्ड्स कोडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आप, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सब, तो आप यहाँ पे पूरा आपका फोकस ही आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो गवर्नमेंट जॉब भूल जाओ, यू जस्ट गो टू द आईटी सेक्टर। बट इफ यू जस्ट 50% डाउट भी आपको दैट इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू, लाइक यहाँ पे आपको कोडिंग उतना, ये कोई कहीं पे पत्थर में नहीं लिखा दैट इफ यू हैव डन बीटेक डिग्री यू जस्ट हैव टू कोड, लाइक you don't want to choose, don't have any right to choose any different path. you you have your life, you have to choose your path. So यहाँ पे आपको जस्ट फोकस ऑन योर इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट देखो, उसके बाद देखो नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या है, ठीक है, करंट नेसेसिटी आपकी जॉब है पाना, या गवर्नमेंट जॉब पाना है, या यू हैव टू जस्ट वर्क टू गेट अ पर्टिकुलर सैलरी। सो आई एम, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई थिंकिंग इज दैट आई विल गो फॉर अ प्राइवेट जॉब फर्स्ट, ठीक है, देन आई विल प्रेफर, लाइक यहाँ पे मैं प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन तो कर ही रहा हूँ, बट यहाँ पे साथ साथ मैं गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। जस्ट मैंने अभी रिसेंट में अपलोड किया है फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, कैट, सी जी एल, सी एच एस एल, एस एस सी एग्जाम, आप देख सकते हैं वो वाली वीडियो मैथ्स के लिए। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दैट आई एम, ये प्राइवेट एग्जाम तो कहीं नहीं जा रहा है, बट इसको लेना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है आजकल के टाइम में। सो यहाँ पे प्राइवेट के लिए जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत यहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कर रहा हूँ, बिकॉज दोज बोथ आर हैविंग सेम पैटर्न राइट नाउ। बस यहाँ पे मैं प्राइवेट में कुछ थोड़ी बहुत कोडिंग के लिए और थोड़ा बहुत हमें इंग्लिश अच्छी करनी पड़ती है, और इंग्लिश यहाँ पे आपको हर जगह हेल्प करेगी। सो आई एम एमिंग फॉर प्राइवेट जॉब बट साइमल्टेनियसली आई एम वर्किंग ऑन अ गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। सो दोनों में से जो पहले लग जाए अच्छी बात है। अगर एक यहाँ पे मैं एक भी सक्सेसफुल होता है फॉर अ प्राइवेट, सो आई विल जस्ट गिव अ रिलीफ टू द गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, बिकॉज यहाँ पे मुझे प्राइवेट ऑलरेडी मिल रहा है तो गवर्नमेंट में थोड़ा सा ले डाउन कर सकता हूँ अपनी प्रिपरेशन को। अगर यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो प्राइवेट का यहाँ पे क्वेश्चन ही आउट हो जाता है। सो that's I want to share with all of you. And if you are aiming to a particular job, just subscribe to the channel, and I am sharing with all of my notes, particular notes जो मैं बनाऊंगा, ठीक है। अगर नोट्स मैंने नहीं भी शेयर किए देन आई एम प्रिपेयरिंग अ स्लाइड, ठीक है, स्लाइड से मैं पढ़ाता हूँ तो आई विल शेयर द स्लाइड्स पीडीएफ विथ ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे आप स्लाइड से भी पढ़ सकते हो एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स ऑल्सो, ठीक है। अगर खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होता है, बट इफ़ यू डोंट वांट टू मेक इट, मैंने ऑलरेडी जो बनाऊंगा स्लाइड वगैरह वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सो व्हाट सब्जेक्ट्स आई विल गोइंग टू टीच यू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स, देन हमारा एप्टीट्यूड, एंड देन हमारा इंग्लिश, ओके। सो दिस इज द टाइमलाइन और पैटर्न जो भी आप कह लो। आई विल गोइंग टू मेक द वीडियोज फॉर ऑल ऑफ द एग्जाम इन वन पर्टिकुलर वीडियो। लाइक यहाँ पे मैं बात करूँ तो आई विल मेक फॉर एस एस सी, ओके, एफ कैट, रेलवे एंड यूपीपी, यानी कि यूपी पुलिस। तो यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा
these all exams are following these three particular subjects, and यहाँ पे level जैसे बढ़ेगा डिक्रीज होगा वहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर दूंगा दैट दिस इज द क्वेश्चन लेवल यू विल गोइंग टू फेस ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बेसिक सभी के क्लियर करा दूंगा, और इसके साथ साथ आपको लेवल बता दूंगा कि इस लेवल के क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में मिलेंगे, इस लेवल के क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में मिलेंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो में आपका जो भी मैंने एग्जाम बताए सारे एग्जाम यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप एंड तक रुके हैं सो जस्ट सब्सक्राइब इट आउट and do share with your friends and family to whom you are wanted to get successful. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।